माइनिंग मीन्स माइनिंग से लैंड ही नहीं खराब होता, फॉरेस्ट भी रिमूव किया जाता है डिफॉरेस्टेशन माइनिंग की वजह से. इट इज एन इन्वायरमेंटल लॉस. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो इन्वायरमेंटल लॉस, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं लैंड पॉल्यूशन. अंडरस्टूड. डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो आई सेड दैट इट इज एन इन्वायरमेंटल लॉस, लैंड पॉल्यूशन. तो ये सारे टॉपिक इट विल बी ऑल्सो यूटिलाइजेबल इन योर व्हाट आई सेड दैट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. सो वी शुड व्हाट माइनिंग भी होना चाहिए, इट शुड बी अंडर द स्ट्रिक्ट लॉ एंड आफ्टर दैट इट शुड बी कवर्ड and trying to make with the cover कर दो, या we should try to make the water and some kind of what लोग open छोड़ देते, that is also one of the way. And mining के वजह से after the independence India has lost 80,000 hectare of the land. 80,000 hectare of the land which is supposed to be what is one of the greatest problem that we have been able to see due to the what mining. 80,000, 80,000. Another I said that urban encroachment. ये समझ में आ गया urban encroachment. Population is increasing. Yes, population is increasing at higher rate, and then I said that for their livelihood, for their what is settlement, there is land is required, and for their urbanization, urban encroachment is taking place in the agricultural land. So I have said there is a competition between which one I said that land, industry, and urban areas. Land, industry, and urban areas. So we have seen deforestation, overgrazing, it is okay. Understood? Then we have seen heavy rainfall, and so advantage आपको समझ में आ चुका है. We have to see the advantage. हमें एक तो arable land के बारे में पता चलेगा, and arable land, so it is in a net area shown. It is current fallow land and other fallow land. Understood? And then we have been able to see potential land. It is in the form of, I said that beside arable land we have what culturable waste, permanent. Understood? And these are the and the permanent grazing and miscellaneous tree crops and all. So we are using this is हम लोग क्या है, we are knowing बहुत सारे describe किया मैंने इसके बारे में advantages. And then deforestation, overgrazing, this leads to the, I said that out of total land area, as many as 175 million hectares suffer from the, हमारे इंडिया में जितना भी है उसमें से 175 million hectare of the India is what facing some way degradation. ये छोटा सा फिगर है या बड़ा सा फिगर है? तो हमारे पास यदि डिस्प्यूटेड रीजन हटा दिया जाए तो 305 million hectare land, और उसमें से 175 million hectare of the land is facing some way here and there land related problem. And then land degradation is caused largely by soil erosion. सबसे बड़ा soil erosion, but also by water logging and excessive salinity and alkalinity. Deforestation clear है, heavy rainfall, steep slopes पे explain कर देंगे. You can explain everything, north east, western Ghat, कहाँ कहाँ heavy rainfall से क्या हो रहा है, landslide, wind erosion, shifting river channel, gully erosion, water logging and salinization. यहाँ पे जितना लिखा हुआ उससे ज़्यादा मैंने बताया हुआ. Understood? And if किसी में दिक्कत हो तो you can ask me. Mining 80,000 hectare, urban encroachment, it is in a tough competition between agriculture, urban and industrial development, and social conflicts. You know that conflict rise due to rights to occupy, transfer land, tenants. ये तो social conflict आज भी हमारे यहाँ land problems को दे रहा है. Yes, farmer. Why do the farmer is not thinking to make the soil to be fertile? क्यों नहीं वो सॉइल को फर्टाइल बना रहा? Why the farmer is not making tenure, land tenant? क्यों नहीं बना रहा? He is not getting incentive. Incentive का मतलब है कि आपको 10 साल चलो करना है. He is not getting incentive. This is a social conflicts arising, and therefore I said that the farmers are not using. Understood? So there is हमने 4-5 चीजें बताई तो government should implement it. Which are I said that land ownership, land tenancy, लैंड सीलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड. उसके बाद हमें देखना है कि फार्मर्स को, यस वी हैव टू प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑफ द क्रॉप्स एंड ऑल. यस वी हैव टू प्रोवाइड देन रिसर्च फॉर द क्रॉप्स, एग्रीकल्चर. वी शुड प्रोवाइड द, आई सेड दैट एक्सटेंशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम. ये सारा उसके बाद आएगा. लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लैंड जो यूज में नहीं हो रहा है, लैंड को प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाया जा रहा है. देयर आर सम व्हाट आई सेड दैट इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम. यस और नॉट? Infrastructure problem is something. This is not what I said that. ये land selling, land ownership, land tenancy, ये सब क्या बोलते हैं इसे हम? Institutional. Understood it? So social conflicts. तो इसको हमको reduce करना है.
transfer land, tenant cultivators face major disincentives such as fear of eviction, insecurity of tenure, high rents. लोग कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा रेंट भी लेते हैं. आप दे दिया लैंड तो कहीं पे आपसे 1/3 लेंगे, 2/3 आपको दे देंगे. आपने एग्रीकल्चर किया, रेंट ले लिया ना उन्होंने, पूरे 1 साल का लैंड दे दिया, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है आप मुझे 1/3 दे दो. समवेयर इट इज एन हाफ दे आर टेकिंग. और यूपी एंड बिहार में क्या फेमस है, उसको क्या बोलते हैं, हाफ का मतलब अधिया. और सिंपली बोलते हैं जो प्रोड्यूसर है उसका आधा दे देना मुझे. अंडरस्टूड. सो तो यही है. देयर इज एन आई सेड दैट देयर इज एन प्रॉब्लम ऑफ आई सेड दैट रेंट, फियर ऑफ एविक्शन हटा दिया जा सकता है, इनसिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर एंड हाई रेट्स, इनएडिक्वेट सरप्लस टू इन्वेस्ट. तो उनके पास जब ऐसा रहेगा, अब उनका खुद ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एवरी ईयर उनके पास भी कम रहेगा और इन्वेस्ट भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं को इन्वेस्ट करना होता है. जब वो आपको व्हेन द लैंड ओनर हैज गिवन द लैंड टू यू टू डू, तो सब कुछ इन्हीं को इन्वेस्ट करना है. वो ही विल कम टू टेक रेंट अर्निंग. रेंट का मतलब मैंने लैंड दिया, उसका रेंट दे देना मुझे. अंडरस्टूड. So this is the and land ceiling laws have not been implemented with adequate strictness and consolidation of land itself. अभी भी मेरे यहाँ मतलब मदर को बुलाया जा रहा था, कंसोलिडेशन किया जाएगा. कोई बात नहीं, आप वहाँ रहिए, कुछ पैसे भिजवा दीजिएगा, आपका कंसोलिडेशन. फिर कुछ नहीं हुआ. आई सेड दैट देयर इज ऑलवेज कुछ पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा हवा बनाते हैं. फिर आई सेड दैट कंसोलिडेशन लैंड, इसको हिंदी में बोलते चकबंदी. सो दिस इज द थिंग विच इज ऑलवेज द गवर्नमेंट इज नॉट हाईली. समझ में आ गया. वी हैव सीन लैंड यूज क्लासिफिकेशन, वी हैव सीन द एडवांटेजेस ऑफ द लैंड एंड द एडवांटेजेस ऑफ द लैंड यूज क्लासिफिकेशन, वी हैव सीन द लैंड प्रॉब्लम्स. क्लियर. जितने भी आपको दिमाग में सेट हो जाए आप तुरंत लिखते जाओ. आप ये रट लेना ये सारी चीजें. डिफॉरेस्टेशन, हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड, विंड इरोजन, शिफ्टिंग ऑफ द रिवर, गली इरोजन, वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन, अल्कलाइजेशन, जो भी आपको दिमाग में आए, माइनिंग, अर्बन इंक्रोचमेंट. अंडरस्टूड. कंपटीशन बिटवीन दिस एंड देन सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स. सॉल्यूशन ऑफ द लैंड प्रॉब्लम्स. एक तो प्रॉब्लम आपका, हम लोग जो सॉइल खराब होगा, द लैंड विच इज आई सेड दैट पोटेंशियल लैंड एंड द लैंड विच इज बैरन. अंडरस्टूड. एंड देन वन विदिन द अरेबल लैंड, वन लैंड आई हैव सेड दैट फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो, उसमें हमें काम करना है. यस और ना. तो वी कैन, व्हाट इज एन वाटर लॉगिंग, किस में आ जाता है वाटर लॉगिंग. आई सेड दैट कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वो लैंड जो कि वेस्ट बना, वाटर लॉगिंग एंड ऑल, उसमें मुझे काम करना है. फिजिकल दैट वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन, अल्कलाइजेशन, सॉइल इज अल्कलाइजेशन नहीं, इसमें मुझे काम करना है. फिजिकली वी हैव टू रिक्लेम इट. यस और नॉट. एंड देन माय डूइंग सम एक्टिविटीज ओवर देयर. एंड देन वी हैव आल्सो barren and unculturable land. So barren and unculturable, we have to put large amount of what cost to bring back alkaline soil, desert areas, mountainous region, ravine region. In this region we have to work. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल रिक्लेमेशन. एंड देन सम रीजन्स आर, आई सेड दैट फ्लड प्रोन एरिया, सम रीजन्स आर ड्रॉट प्रोन एरिया, वी हैव टू आल्सो वर्क ऑन इट. सो फिजिकल रिक्लेमेशन विल बी डन फॉर विच, आई सेड दैट विच आर द लैंड. आई सेड फर्स्ट हमने कहा सलाइन, वाटर लॉगिंग. अंडरस्टूड. देन आई सेड दैट अल्कलाइन, डेजर्ट, माउंटेनस, रेवाइन. अंडरस्टूड. इन दिस एरियाज एंड देन ड्रॉट प्रोन एंड फ्लड प्रोन एरियाज, जहाँ पे फ्लड बार बार आता है तो हमें बार बार उस लैंड को पानी से हटाना, वहाँ पे क्या करना. तो गवर्नमेंट हैज टू टेक व्हाट, फ्लड से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, देयर इज एन आर्टिफिशियल इम्बैंकमेंट. फ्लड रीजन को क्या कर दिया, रिवर बैंक्स का हाइट इंक्रीज कर दिया. दैट देयर इज एन व्हाट इज एन इम्बैंकमेंट, बट इट्स नॉट लॉन्ग टाइम इन्वायरमेंट फ्रेंडली. क्योंकि जितना आप इम्बैंकमेंट बढ़ाओगे तो नीचे में जो फ्लड एवरी ईयर आता था, उस फ्लड के जो सिल्टेशन, रिवर सिल्टेशन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस. अंडरस्टूड. और धीरे धीरे लैंड का रिवर ऊपर उठने लगेगा, एक दिन तोड़ देगा, इट विल मेक मोर फ्लडी कंडीशन. सो आपने क्या कर दिया, यू हैव प्लेड विद द नेचुरल डेप्थ ऑफ द रिवर. So there is an, I said, physical reclamation and social reclamation I have talked about. Anyhow, we have to increase the what, soil productivity, bringing the more agricultural land. अभी हमने देखा था. I said that some culturable wasteland by the ignorance of the human people and all the state legislation that I talked about. Understood? This is the way we have to, what it is, I said that social approach. Another we have to see, I said that physical approach, physical reclamation, social reclamation and physical. These are the two ways we can be able to make soil or land problem can be solved. Understood? समझ में आ गया?
So we have finished with, I said that land resource, land as a one resource. Understood? इसके बाद one of the another factor it is coming of, or I said that water resource, and the water resource is of the two types. I said that surface water resource and I said that ground water resource. Clear? तो एक बार आप लोग पढ़ कर भी आएंगे. लैंड यूज क्लासिफिकेशन क्लियर हो चुका है? Yes. Now next one we are going to see, I said that some portion in the industry. आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, बट देयर इज एन नोट्स. आपको जो मिल जाएगा नोट्स, दैट यू कैन यूज दिस.